ਜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕੈਂਸਲ। होर की छड़ा। रोज रोज कौन सुनेगा टोका टाकी। ਬੰਦਾ ਛੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। जब मैं अपने घर में थी तो मेरे पास वो था विजय सुपर, जानते हैं आप, वो लंबा लंबरेडा वाला स्कूटर। ओके, आप पैदा भी नहीं हुए। हाँ तो जमी दरअसल लस्सी है कि पैदा ही नहीं होएगा। पर्सनली जे गल करिए कि तुसी आप पर्सनली कितनी स्पीड तक मोटरसाइकिल ले जाते हो? मैंने मैक्स 115 किया, उससे ऊपर नहीं किया। और तो रब भी कहता होना भी हुण छल नहीं, तू कल्ली है, जा जिथे जाना जा, जी ले अपनी जिंदगी। ते ख्याल नहीं है कि भी शायद हुण छड्डना पऊगा या छड्ड देवां क्योंकि जा फैमिली प्रॉब्लम। हाय हद होगी। मेरी जान है वो। बाइक की गल कर रहे हैं। अच्छा, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਸੂਟ ਸਾਟ ਮੰਗਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਲੈਲ। बिकॉज जैसे चंडीगढ़ का ग्रुप है तो यहाँ पे बेसिकली सब पंजाबी ही है, तो वो पंजाबी टच देने के लिए, वो फ्रेंडशिप का दिखाने के लिए कि हम एज अ फ्रेंड है सारे के सारे। सो बहुत सारे नामों में से हमने ये नाम ढूंढ के निकाला, ये नाम ठीक है। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पता चलना चाहिए था, ਅਸੀਂ पंजाबी हाँ। तो बोले हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम जब से कनाडा से चले हैं, मतलब जितनी भी सिटीज़ होते हुए हम सिटी या कंट्रीज़ होते हम आए हैं, हमें एक भी फीमेल राइडर अभी तक नहीं मिली। और आपको देख के हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम अपने जो ग्रुप का पिन है वो आपको लगाना चाहते हैं। तो पूरा ऐसे बहुत ऑनर होता है कि कोई दूसरा ग्रुप आपको पिन लगा रहा है। तो एक्चुअली ये UM रेनेगेड कमांडो बाइक है, और उस कमांडो बाइक में भी मोहावे मॉडल है। ओके, लाइक यू कैन सी। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵਾਲਾ ਬੰਬੂ ਘਾਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨੇਹਾ TV। ਅੱਜ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੋਲਟ ਭਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਢੋਕਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਮੈਮ। सत श्री अकाल। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी बिल्कुल। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? एक्चुअली ये UM रेनेगेड कमांडो बाइक है, और उस कमांडो बाइक में भी मोहावे मॉडल है। ओके, लाइक यू कैन सी। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵਾਲਾ ਬੰਬੂ ਘਾਟ ਹੈ। ये अमेरिकन बाइक है, अमेरिका की कंपनी यहाँ आई, कुछ बाइक उन्होंने लाइक बनाई और फिर वो भज गई वापस। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੂਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼ਾਲੀ ਮੈਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਗੇ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢੋਕਲਾ ਮੰਗਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਚਲੋ ਆਓ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਡਮ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। थैंक यू सो मच। और मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स मैंने खुद बनाई है, आपके पीछे वाली भी मैंने खुद बनाई है। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? गार्डनिंग का शौक़ है, और जितने भी प्लांट्स वगैरह लाइक बहुत सारे प्लांट बनाती हूँ। प्लास्टिक की बॉटल्स को रीयूज़ करके उनको अलग अलग शेप दे के उसमें प्लांट्स लगाती हूँ, अच्छा लगता है। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਰੋਕ टोक ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? नहीं नहीं, मेरी भी शादी जल्दी हुई थी। आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड जब मेरी शादी हुई थी, तो 20 साल की थी मैं। और मम्मा भी बहुत लाइक सासू माँ बहुत अच्छे थे, वो रोक टोक नहीं बिल्कुल नहीं करते थे, वो लाइक बेटियों की तरह ही रखा। बट ऐसा होता है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान जी जल्दी बुला लेते हैं, तो उनको लाइक शादी के 2 साल के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। बट जब तक वो मेरे साथ थे उन्होंने कभी भी कोई शिकायत का ऐसा मौका नहीं दिया, कभी भी।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ, हेयर स्टाइल शायद ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ? अरे नहीं, मतलब लाइक क्या बात करो, 20 साल की उम्र में और 50 साल के होने वाले बंदे में फ़र्क तो होता है। हेयर स्टाइल ਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ लड़ सकते। ओके, मेरे बाल कभी भी ज़्यादा लंबे नहीं थे, छोटे लाइक शोल्डर तक, इससे बड़े नहीं थे। बट जब पहली बार मुझे देखने आए उस समय भी मतलब शोल्डर तक थे, तो पूरा खुला वुला। लाइक मेरा मानना यह है कि आप जैसे हो ना, अगर आप वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो वो सामने वाले के लिए भी अच्छा है, वो आपको जान जाएगा कि ये कैसे है। आपको एक किस्सा बताती हूँ। जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे देखने आ रहे थे तो मेरे को लंबे लंबे एयरिंग पहनने का शौक है, और मैंने लंबा एयरिंग पहना, तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है अरे यार क्या लड़का क्या सोचेगा ये लंबे लंबा एयरिंग पहन के आती है। मैंने बोला दिस इज़ मी। अगर वो मेरे को लंबे एयरिंग में आज पसंद कर रहे हैं तो वो सारी ज़िंदगी पसंद करेंगे, और अगर नहीं पसंद कर रहे तो वो टोक देंगे, तो मुझे मालूम चल जाएगा ना कि भाई ये बंदा मेरे लिए नहीं है। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕੈਂਸਲ। और की छड़ा। रोज रोज कौन सुनेगा टोका टाकी। ਬੰਦਾ ਛੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਬਾਈ ਤਾਰਾਪਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਬਹੂਆਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੋਕੇ ਹੋ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਲੈ ਆਈਓ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ओके, ये बाइक तो मेरे को बचपन से ही शौक था। कोई भी बाइक जाती थी आसपास तो मुझे लगता था कि अरे ये लड़के कैसे चलाते हैं बाइक। और ये बात मैं कर रही हूँ जब मैं 7th 8th में थी तब की, ठीक है, आज से बहुत पुरानी बात है, ये बहुत ही पुरानी बात है। मतलब 30-35 ज़्यादा ही साल हो गए होंगे। ओके, तो मुझे अगर किसी की मोपेड भी चलाने को मिलती थी ना तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ मिला है चलाने को। तो मुझे खुद याद नहीं है कि आज तक मैंने कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स चलाई हैं, जो मिला मैंने चलाया। लाइक मुझे इतना पसंद था। सबसे बड़ी बात, मैंने काइनेटिक कभी नहीं चलाई। मतलब ये होता है ना कि लड़कियों की हमें काइनेटिक लेनी है, स्कूटी लेनी है, ना 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 लेनी है। मेरी पहली बाइक भी होंडा शाइन थी, मैंने वो ली थी, और उससे पहले भी मेरे पास बजाज की थी। तो लाइक ये सब लेना है तो बाइक लेना है, नहीं तो नहीं चलाना, ऐसे। करे नहीं मम्मी डैडी टोकते लड़ते नहीं? वो तो मेरे पास जब मैं अपने घर में थी तो मेरे पास वो था, विजय सुपर जानते हैं आप, वो लंबा लंबरेडा वाला स्कूटर। ओके, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ, तो जमी दरअसल लस्सी है कि पैदा ही नहीं होएगा। तो वो स्कूटर भी जो कभी कभी लड़कियां चलाती नहीं होंगी, मैंने वो भी चलाया है। और उस समय शायद हाँ होंडा की बाइक थी हमारे घर में, हीरो होंडा थी, तो फिर मैं वो हीरो होंडा चलाती थी ऐसे करके। तो पिताजी शुरू में अरे कहाँ ये बाइक लेके जाएगी, पर उन्होंने देखा कि ये तो नहीं सुनने वाली है, तो ले जाओ, अच्छा जहाँ जाना है बस, ऐसे फिर धीरे धीरे शुरुआत। थोड़े नाल कोई ब्रदर सिस्टर कोई हैगा? हम 4 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, और बाद में 4 बहन भाई ना, तो 3 है मेरे बाद। कोई ना। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਢੀਠਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਢੀਠਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਢੀਠਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? नहीं, बल्कि मेरा भाई जब मैं किसी की बाइक लेके चलाना शुरू करती, भाई डरता था, दीदी गिर जाओगे, टांगे टूंगे टूट जाएंगी, क्या होएगा। तो मैं चला रही हूँ, मैं संभाल लूँगी, तो चिंता मत कर। तो फिर और मैं बड़ी भी थी, तो मतलब थोड़ा बहुत कि क्या दीदी को बार बार बोलना, उन्होंने सुनना तो है नहीं। किसी ने आना तो उनकी चाबी लेके बैठ जाना कि मैं पहले एक राउंड मार के आऊँगी, फिर आपको चाबी दूँगी, ऐसे करके। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਡਮ ਜਿੱਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਨਾ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ਜਿੱਦੀ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ 2-3 ਵਾਰ ਢੋਕਲਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਢੋਕਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। हाँ जी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਢੋਕਲਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਢੋਕਲਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ। जिद की भी 2 टाइप होता है। एक तो होती है ऐसी जिद जिससे दूसरों को नुकसान हो रहा है ना, आप दूसरे का कुछ बुराई कर रहे हैं या किसी दूसरे का कुछ भी बुरा कर रहे हैं। एक जिद होती है किसी के अच्छे के लिए। सो मेरी वाली जो जिद है ना, वो दूसरों के बेटरमेंट के लिए होती है। अभी आपको आज ढोकला का टेस्ट पता चल गया ना। ਯਾਰ ਬਾਈ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਮਿਰਚ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਜੀ ਬਰਫੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਸੀਗਾ। बर्फी जी। हाँ, वो ढोकला था। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਜ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? वो जितने भी हम किसी राइड पे जाते हैं या हम किसी दूसरे राइडर से मिलते हैं जो हमारे ग्रुप का नहीं है या दूसरी सिटी का राइडर है, मैं ऐसे बहुत सारे राइडर से मिल चुकी हूँ जो ऑल इंडिया टूर पे जाते हैं। तो वो जैसे अब वो चंडीगढ़ आएंगे, वो मेरे से मिलेंगे, वो मुझे अपने ग्रुप का बैच देंगे, मैं उनको अपने ग्रुप का बैच स्टिकर दूँगी।
तो वो कल को बोल सकते हैं कि मैं चंडीगढ़ गया था तो वहाँ शालिनी मैम से मिला था। जैसे अभी एक राइडर आए थे, शायद आसाम से आए थे वो, तो उनको स्पेशली बोला गया कि आप चंडीगढ़ में शालिनी मैम के ग्रुप की मोहर अपने पासपोर्ट पे लगवाइए कि आप वहाँ मिल के आए थे। तो दे कॉल्ड मी कि मैम आप आ जाओ और आपकी हमें आपका लोगो चाहिए, अब ये सब चाहिए। रिसेंटली केरला से 3 राइडर्स आए थे, तब वो मुझे मिले। तो ऐसे एक राइडिंग ब्रदरहुड बोलो, राइडिंग कम्युनिटी बोलो, वो सारी बहुत बढ़ती है। जब आप सोचो, एक आए थे कश्मीर से परिजात जी, मैं उनसे भी मिली थी, उनके भी पासपोर्ट पे मेरे साइन है। तो आप कल को वही कहेंगे कि हम चंडीगढ़ गए थे, और फिर अगर कश्मीर जाऊंगी तो बोलेंगे मोस्ट वेलकम है। जैसे हम चंडीगढ़ में आए थे, आप हमसे मिले, आप कश्मीर आइए। तो इससे आप यकीन मानिए, ये जितना भी कम्युनिटी है ना, ये इतनी हेल्पफुल है ना। कहीं भी किसी को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो पूरे ग्रुप में फ्लैश हो जाता है कि उस सिटी में कोई राइडर है तो बताओ, और विद इन नो टाइम, लाइक 5, 10, 15 जितना भी कोई राइडर पास होता है, वो जाके वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ वो कर देता है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੈਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਈਕਰਸ ਰਾਈਡਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? हाँ जी, बिल्कुल सच है। कनाडा से आए थे वो 5 बाइकर्स थे, और वो मतलब पाकिस्तान ये सब जगह होते हुए जा रहे थे। तो जब वो लोग, हमें पता चला वो सिख राइडर्स थे, हमें पता लगा कि वो आ रहे हैं, तो उनको वेलकम करने के लिए हम लोग गए। उन्होंने, उनके पास लाइक स्टिकर्स तो थे, पर उनके पास एक बैच पिन था। तो उन्होंने बोला, मेरे को स्पेशली बुलाया, मैम इधर आइए, मैं उनसे बात किया। तो बोले हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम जब से कनाडा से चले हैं, मतलब जितनी भी सिटीज़ होते हुए, हम सिटी या कंट्रीज़ होते हम आए हैं, हमें एक भी फीमेल राइडर अभी तक नहीं मिली। और आपको देख के हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम अपने जो ग्रुप का पिन है वो आपको लगाना चाहते हैं। तो पूरा ऐसे बहुत ऑनर होता है कि कोई दूसरा ग्रुप आपको पिन लगा रहा है। तो उन्होंने मुझे पिन दिया, और बल्कि अभी भी वो टच में है। लाइक इट्स बिन आई थिंक 5 ईयर्स हो गए हैं, अभी भी कभी भी उनका मैसेज आता है, और मैडम राइडिंग कैसी चल रही है एंड ऑल। कितना अच्छा लगता है कि कनाडा के राइडर्स भी आपको जानते हैं। बिल्कुल। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਬਾਅਦ हाँ जी, हमारे ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? हमारे ग्रुप में 15-16 लड़कियां तो हैं ही, जो मेरे से लाइक छोटी हैं। मोस्ट मतलब कोई एक आध होगी जो मेरे से बड़ी होंगी, अदरवाइज सारी मेरे से छोटी हैं। 18 साल से लेकर आप समझ लीजिए 49 तक हमारे ग्रुप में है। 18 साल से पहले तो हम लेते ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं मिलता, आपको लाइसेंस नहीं मिलता 18 साल तक तो। और हम लोग जब कोई ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे फीमेल, अभी 13th को इंडियन ऑयल कर रहे हैं, तो सीधा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फीमेल बाइकर्स को बुलाया है। तो हम जितने बोलेंगे, 15 बोले, 20 बोले, हम लोग जाते हैं। और बहुत सारे कॉज राइड्स में भी जाते हैं। ਰਾਈਡਰਸ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ प्रॉब्लम आती है? नहीं, ऐसा होता है कि हम कभी भी जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो बिना राइडिंग जैकेट के नहीं जाते। हमारी राइडिंग जैकेट्स में किसी की भी हो, चाहे फीमेल हो मेल हो, फीमेल में थोड़े से और पैड्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप गिर जाते हो तो फिर वो आपको हेल्प करता है, हेल्प के आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को। बेसिकली हम ज़्यादा स्पीड नहीं करते हैं, एक स्पीड लिमिट बता देते हैं कि इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। ये जो 110, 115 वाला जाना है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड होती है, जिसमें हम फ्री देते हैं कि आप किसी का मन है, मतलब हम 70 की स्पीड से ही जा रहे हैं, हमने स्पीड नहीं बढ़ा रही, और सामने तक बिल्कुल 1 लेन है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा ऐसे, तो वहाँ हम बोल देते हैं कि थोड़ा सा फ्री फ्लो है, आप जा सकते हो। तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के वहाँ पर जा सकते हो। अदरवाइज़ देयर इज़ ए परफेक्ट रूल कि इतने से ऊपर नहीं जाना। और जो एक राइडिंग कम्युनिटी में क्या होता है, कोई भी राइड में एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो जो लीड कर रहा है हेड है, उससे आगे नहीं जाना, टेल से पीछे नहीं जाना। तो सब लोग बात मानते हैं, सिस्टमेटिकली चलते हैं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੰਡਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ? मैं ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? हाँ, मोस्ट ऑफ द लाइक मैं लीड करती हूँ, नहीं तो कोई दूसरा लीड करता है। जिसको रास्ता पता होता है वो भी लीड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मैंने ही लीड किया है। बट ये है कि एडमिन मैं हूँ, और भी लोग हैं जो हमारे ग्रुप के लिए काम करते हैं। बट ये है कि जब अगर एक बंदे को आप किसी को लेके चलते हो कि ये हमारा हेड है, तो वो चीज़ें थोड़ी सिस्टमेटिकली चलती हैं। अगर आप 10 खड़े कर दोगे तो कोई इसकी बात सुनेगा, कोई उसकी बात सुनेगा। सो बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? मैंने मैक्स 115 किया, उससे ऊपर नहीं किया।
ਮਗਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਆ, ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾ, जी ले अपनी ज़िंदगी। सही गल है, बट लेकिन द बैक ऑफ माई माइंड तो नहीं, ये ज़्यादा स्पीड है, इससे ऊपर नहीं जाना है, तो फिर हम लोग नहीं, लाइक वैसे नॉर्मली नहीं, वो मैक्स था जो मैंने चलाया था, अदरवाइज नहीं। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਕਟਸ ਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਚਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਚਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ऑल ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ? हाँ, ये इसमें सारे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग बैचेस है। जैसे हम ना बहुत सारी कॉज राइड में जाते हैं, जैसे कि पीछे हम एक बार पटियाला गए थे, वहाँ पे एक स्कूल है डेफ वाला, उनको नेशनल अवार्ड मिला था, तो सिर्फ उनके ऑनर में कि उनको नेशनल अवार्ड मिला है, यहाँ से भी 15-20 राइडर्स गए हमारे साथ में, पटियाला के और राइडर्स भी आए। ऐसे एक बार पटियाला हम गए थे, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक रैली निकलनी थी, हम लोग गए। RDB राइड है जो थम्पर्स करवाते हैं यहाँ पे, वो भगत सिंह जी के ऑनर में होती है, शहीदी दिवस के, हम लोग वहाँ पर जाते हैं। RDB मैं 3 बार अटेंड कर चुकी हूँ, 3 साल तक लगातार। और सेव अर्थ राइड है, सेव गर्ल चाइल्ड राइड है, NGO से यहाँ पे परिवर्तन NGO है, उन्होंने हमें बोला कि हमें आप हमारे लिए एक बार राइड करिए, तो लगभग कोई 100-200 राइडर्स हम उस दिन थे और हमने उनके लिए चंडीगढ़ के अंदर लोकल राइड की। आर्मी के लिए ब्रेव हार्ट राइड होती है, जो आर्मी के ओनर के लिए होती है, वो मैं 3-4 बार अटेंड कर चुकी हूँ। सो मस्ती वाली राइड और लाइक हमारे ग्रुप के लोग स्पीति वगैरह भी गए हैं, मैं नहीं गई हूँ अभी तक, लेकिन सारे हर टाइप की राइड्स होती ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ स्पीति गए? उसका कारण है, आप जानते हैं मेरे बड़े बेटे के बारे में? मैंने नहीं जानते, ओके। मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। सबसे जो बड़ा बेटा है ना, वो 26 साल का हो गया है, अभी 27 में इज़ रनिंग 27। वो जब पैदा हुआ था ना, तो उसको ब्रेन हैमरेज हो गया था। अभी ब्रेन हैमरेज में क्या है कि ही इज़ टोटली बेडरिडन, मतलब 26 साल का टोटली बेडरिडन, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नथिंग इज़ देयर। तो आई हैव टू लुक आफ्टर हिम, पूरा रोज़ खिलाना, जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं ही देखती हूँ। तो मैं बेसिकली उन राइड्स पे जाती हूँ जहाँ मुझे 1 दिन मैक्सिमम 2 दिन लाइक गया वापस आ गया, वो एक होता है ना माँ का सबसे पहला वाला जो फ़र्ज़ होता है। सो मेरा, अगर आप स्पीति जाते हो, अगर आप ले जाते हो, यू नीड 10-15 दिन कहीं नहीं गए आपके, या 1 हफ़्ता कहीं नहीं गया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिली, बट वो ना बैक ऑफ माई माइंड, अरे अपने बेटे को इतने दिन तक कैसे छोड़ के जाऊँ, और वो भी कि कौन खिलाएगा, कैसे करेगा, वो परेशान हुआ तो क्योंकि इतने सालों से मैं उसको हैंडल कर रही हूँ ना, तो मुझे उसका हर एक चीज़ पता है कि वो किस बात के लिए रो रहा है या क्या चाहिए। मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं समझ पाता, तो इसलिए फिर मैं उसको छोड़ के दिन तक नहीं जाती हूँ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? हाय हद होगी मेरी जान है वो। ਬਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ अच्छा बाइक मैंने एक्चुअली क्या है कि अब मेरे जो दूसरे बच्चे हैं, एक 22 साल का है, दूसरा लड़का, बेटी 19 साल की है, जब ये धीरे धीरे बड़े हो गए ना, ये बाइक मैंने 4 साल पहले ही लिया है, ठीक है। तो उनको पता है कि मम्मा का पैशन है बाइक राइडिंग एंड ऑल, तो उन्होंने बोला कि मम्मा आप लाइक हम बड़े हो गए हैं, आपको हमें नहीं देखना है, हम अपना खा पी सकते हैं, हम मंगा सकते हैं, रीशु भैया को भी देख सकते हैं, तो अब आप अगर राइडिंग करना चाहते तो आप कर सकते हो। तो दे पुश्ड मी इनटू लाइक राइडिंग कम्युनिटी, मम्मा जाओ। एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरी फर्स्ट राइड थी, आई वाज द ओनली फीमेल राइडर, सभी मेल राइडर 50 के आसपास, तो आई वाज लाइक जानती नहीं उनको, कैसे जाऊँगी। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मुझे बोले, अरे जाओगे तभी तो जानोगे, लाइक आप जाओ, आपको निकलना चाहिए, आपने इतने साल अपने घर परिवार को दिया है, बेटे को दिया है, तो अगर किसी के मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में ये नहीं किया, जाओ घूमो। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ अप्रिशिएट। ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? अरे मैंने एक बार ना अपने पूरे बाल लुक, पता है आपको, सरगंजा तो आई डिड इट, सरगंजा कर लिया। गंजा करने से पहले मैंने सिर्फ अपने बच्चों के पास गई, बोला कि देखो भाई तुम्हारी माँ अपना सर मुंडवाने वाली है, आप लोग रोज़ देख सकते हो मुझे, देयर इज़ प्रॉब्लम। बोलते नहीं मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है हमें क्या प्रॉब्लम होगा। देन आई वेंट टू माई हस्बैंड कि भाई आपको कोई दिक्कत है, पता लगा सो के उठे और डर जाऊँ मुझे देख के। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਸੂਟ ਸਾਟ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ मंगलैल मंगती नहीं, सीरियसली सच्ची नहीं मांगती, मैं मजाक तो पूछ लो ना, मैं नहीं मांगती। नहीं, मतलब लाइक हमारी शादी को 27 साल, हाँ 27 साल हो गए हैं। मैंने आज तक कभी उनको बोला कि हमारा एनिवर्सरी है कुछ ले दो या बर्थडे है कुछ ले दो, वो नहीं लेके देते, ठीक है।
ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਗਲਾਈਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਲਿਆ ਦੋ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੂਟ ਮੰਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਕੋਈ। जब ये भी लेनी थी तो मैंने उनको बोला आधे पैसे आप दो आधे पैसे मैं देती हूँ, तो लाइक आई एम नॉट वर्किंग, तो जो भी सेविंग धीरे धीरे की थी तो आधे पैसे उन्होंने दिए आधे पैसे मैंने दिए और मैंने ये वाली बाइक ली। तो प्राउडली आई कैन से कि इसमें आधे पैसे मेरा लगा हुआ है। हाँ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ? अब नहीं मिलती एक्चुअली। 2017 में वो इंडिया में आई थी और उन्होंने इंडिया की कंपनी के साथ कोलैब करके ये बाइक्स यहाँ बनाई है, अमेरिकन ओके। बट क्या हुआ कि समहाउ जिनके साथ कोलैब किया था 2-3 सालों के बाद वो कोलैबोरेशन टूट गया, तो दे वेंट बैक। तो अभी बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि ये बाइक सेल आउट करना शुरू कर दिया, बिकॉज ये अब कि आगे इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे ऐसे करके। बट मुझे आप बिलीव कीजिए, मुझे इतने अलग अलग कंपनीज बोल चुकी है ना कि आप इसको छोड़ो हमारी बाइक ले लो, लेकिन मेरे को अंदर से ही ऐसा सब प्यार हो रखा है ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये है क्या। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ओके हमारे ग्रुप का नाम है MMM राइडर्स, जिसकी फुल फॉर्म हाँ 3 बार M है ओके, M क्यूब यू कैन से दैट, और उसका फुल फॉर्म है मित्रांदी मोटरसाइकिल मंडली ओके। सो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हम लोग सोच रहे थे कि ग्रुप का क्या नाम रखे क्या, बिकॉज देयर लॉट ऑफ राइडिंग ग्रुप, वहाँ जितने स्टिकर्स हैं ना उन सब पे एक न एक राइडिंग ग्रुप का नाम है। तो बेसिकली ये राइडर वो राइडर, लाइक बहुत छोटा सा नाम होता है, और हमने सोचा कुछ अलग होना चाहिए। तो मित्रा काइंड ऑफ आप कह सकते हो फ्रेंड ओके, मंडली भी आप कह सकते हो ग्रुप। सो हमारे जितने भी जो ग्रुप के लोग हैं ना एज अ फ्रेंड जाते हैं, एज अ फ्रेंड बात करते हैं। लाइक मैं इतनी मेरी जो उम्र है मेरे से बहुत छोटे छोटे ग्रुप में है, बट दे नेवर ट्रीट मी लाइक कि ये हमारे कोई बहुत बड़ा हमारे साथ जा रहा है, मतलब दे ट्रीट मी लाइक कि मैं उन्हीं की एज की हूँ। तो हमारा एक ग्रुप का इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया है, उस फ्रेंड सर्कल के बेसिस के ऊपर ही बोलना हमने सोचा कि ऐसा रखना चाहिए कि लगे कि एक दोस्तों का ग्रुप है, एक राइडिंग ग्रुप है जिसमें सारे दोस्त हैं। तो इसलिए हमने मित्रा दी मोटरसाइकिल मंडी करके वो नाम रखा। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਬਿਗ ਬਾਈਕਰਸ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖा, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? हमने ये भी सोचा जब हम नाम सोच रहे थे कि लगना चाहिए कुछ पंजाबी टच आना चाहिए, बिकॉज जैसे चंडीगढ़ का ग्रुप है तो यहाँ पे बेसिकली सब पंजाबी ही है, तो वो पंजाबी टच देने के लिए, वो फ्रेंडशिप का दिखाने के लिए कि हम एज अ फ्रेंड है सारे के सारे। सो बहुत सारे नामों में से हमने ये नाम ढूंढ के निकाला, ये नाम ठीक है। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पता चलना चाहिए था ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ओके ड्रीम बेसिकली मैं वैसे कोई ड्रीम रखती नहीं हूँ अपना, क्योंकि जब बहुत कुछ अचीव किया है तो लगता है कि अरे ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया, अब क्या आगे सोचोगे। लाइक मुझे लगता है कि मैंने इतने उम्र तक बहुत चीज़ें पा ली हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, नेम फेम सब कुछ, कि मेरे को ये सब मिलेगा ज़िंदगी में। ठीक है, अब अगर मैं कोई एक ड्रीम लेके चलती ना तो मैं उसी के पीछे दौड़ती रहती, तो फिर वो बाकी चीज़ें जो मुझे मिल रही थी वो मिल ही नहीं पाती, क्योंकि मेरा ध्यान पे जाता ही नहीं, वो एक ड्रीम की तरफ ही जाता रहता। तो बेसिकली क्योंकि मुझे राइडिंग पसंद है, तो ड्रीम अगर आप पूछो तो अपने ग्रुप को और कितना अच्छा बढ़ा सकते हैं, अपने ग्रुप के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मतलब ड्रीम यही है कि कोई चंडीगढ़ का नाम ले तो उसको आना चाहिए कि चंडीगढ़ में एक ग्रुप है MMM राइडर, मतलब चंडीगढ़ का नाम लेते ही हमारा नाम आ जाना चाहिए, ये मेरा ड्रीम है। ठीक है, और मेरा मैसेज सबके लिए है, नॉट फॉर फीमेल। लोग कई बार बोलते हैं कि आप फीमेल को क्या मैसेज देना चाहते हो, तो वो तो ठीक है, लेकिन पर मेल फीमेल बच्चा बड़ा बूढ़ा सबके लिए कि दिल के अंदर जो भी आपके दिल के अंदर है उसको बाहर निकालो। किसी को अगर आप कर नहीं सकते तो एटलीस्ट बोलो, सामने वाले को बोलो, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दे उसको करने में। अगर मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोलती कि मुझे बाइकिंग पसंद है एंड ऑल, वो कभी ना कहते कि जा बाइक ले ले। सो अगर आपके मन में जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना उसको दबा के मत रखो, उसको जितना आप खुद पूरा कर सकते हो खुद पूरा करो, जितना किसी की हेल्प से पूरा कर सकते हो उसकी मदद से पूरा करो, बट करो ऐसे बस। थैंक यू
ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਮ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈਆਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢੋਕਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਢੋਕਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁਨੇਹਾ TV।